السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظرالدین صاحب خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، آپ سنائیے۔ اللہ کرم ہے۔ کہاں پر ہے ابھی؟ ابھی گھر میں ہے۔ کلکتہ میں ہے؟ ہاں کلکتہ میں ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور صاحب کچھ حالات کے اوپر بتائیں، کچھ حالات کے اوپر پیغام ڈلوائیں چینل پہ امت کے نام پہ۔ حالات کے اوپر اب تو امت میں اتحاد تو ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ویڈیو ارے بہت وائرل ہو گیا۔ امام المحققین علامہ طاہر القادری صاحب نے دل جیت لیا دیوبند والوں کا۔ صاحب دیوبند والوں کا دل جیت لیا، اور اس وقت انقلابی شخصیت حضرت مولانا کون ہے، وہ سید سلمان ندوی صاحب، انہوں نے بھی بھرپور انداز میں تائید کر دی صاحب، بہت زبردست تائید۔ اور ماہر علم و فن، ماہر فلکیات حضرت مولانا مفتی سمیع الدین قاسمی مفتی انگلینڈ، انہوں نے بھی بہت کھل کے دل سے تائید کی صاحب۔ وہ کرنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے۔ امت ایک نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اتنا بڑا فلم اسٹار مسلمان ہے نام، تو گھر کو اس کا حملہ ہو جا رہا ہے۔ ہاں بڑا لوگ سیف علی خان کے اوپر، ہاں اس کے اوپر میں حملہ ہو گیا۔ اب بتائیے، اس کا بیٹا کا نام تیمور ہے اس لیے۔ اچھا، اس وجہ سے ہے نا؟ ہاں اس وجہ سے۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ آپس میں ایک نہیں ہے تو۔ اچھا، ہم نے ایک بات دیکھی ہے کہ عیسائیوں میں بھی کبھی ایسا ہم نے نہیں سنا، نہ پنجابیوں میں سنا، نہ ہندو بھائیوں میں سنا کہ وہ لوگ اپنے والوں کو الگ کرتے ہیں کہ تم مزار پہ کیوں گئے، چلو تم خارج ہو گئے ہمارے مذہب سے۔ نہ عیسائی کہتے کہ عیسائی میں بھی دو گروپ ہے ماننے والے۔ مطلب ایک گروپ ہوتا ہے ماننے والا، وہ لوگ مورتی پرست ہوتا ہے لوگ۔ ہاں لوگ جیسے اپنا چرچ وغیرہ میں مورتی وغیرہ لگاتا ہے، اور عیسائی میں ایک اور گروپ ہے، وہ لوگ مورتی نہیں رکھتے ہیں لوگ۔ اچھا، وہ ڈائریکٹ ہاں وہ ڈائریکٹ مطلب اللہ ہی سے یہ کرتے ہیں لوگ، وہ لوگ مورتی نہیں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو وہ الگ فرقہ ہوئی ہے۔ اور سادہ لباس جو ہے اس لوگ پہننا پسند کرتا ہے، مطلب جیسے ان لوگ کا عورت لوگ عیسائیوں میں، ہاں عیسائیوں میں جو سادہ لباس ہوتا ہے، ایک دم مطلب ایک دم بدھوا ٹائپ، مطلب ایک دم سادہ لباس جو ہے، سونا چاندی وغیرہ وہ لوگ پہننا پسند نہیں کرتے لوگ، مطلب منع ہے۔ نہیں، ایسی سختی جیسی بریلویوں میں ہے، ایسی سختی تو کسی بھی فرقے میں نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے علاوہ اور کسی کو صحیح حق پہ نہیں مانتے۔ بہت ان لوگ سے بحث ہوتا ہے کبھی کبھی۔ ویسے میں نے سنا ہے کلکتہ میں معاملہ دیوبند بریلی دونوں کا برابر ہو رہا ہے۔ ہاں ہو تو رہا ہے آہستہ آہستہ، پہلے کلکتے کے لوگ سمجھدار ہیں تو سب سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، بریلی والے تو اللہ سے منگوا نہیں رہے بھائی، یہ کہتے بلیوں سے مانگو۔ ابھی تو ہمیشہ جب بھی بحث ہوتا ہے تو ابھی ہم لوگ یہی بات اٹھاتے ہیں، جیسے اپنے لوگ میں، مطلب جیسے ہم لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں نا، ہم لوگ تو مدرسہ ہم لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن جو پبلک ہے جیسے ہم لوگ ہیں، تو ہم لوگ میں بحث ہوتا ہے تو یہ لوگ بولتا ہے کہ ہم لوگ حق پہ، تو ہم ان لوگوں کو بولتے ہیں کہ حق پہ ہے تو میدان جنگ میں کہاں ہے، ایک تو جنگ دکھا دو۔ یہ لوگ تو کبھی جنگ نہیں لڑے لوگ۔ ہاں، دیوبند کے علماء نے تو جنگ میں شرکت کی ہے۔ دیوبند کے علماء جنگ میں سے افغانستان پورا دیوبندی ہے۔ طالبان کون بنایا؟ اچھا، اس کے علاوہ اب یہ انڈیا، پاکستان اور یہ چھوڑ دو، آپ کیا کہتے ہیں یہ نیپال، تو سارے ملکوں میں دیوبند والے بھرے پڑے ہیں۔ سارے ملک۔ آپ طالبان کون بنایا؟ اور سب دیوبند والوں نہیں۔ طالبان تو دیوبند والوں نے نہیں بنایا، اور طالبان چھوٹا موٹا جنگ نہیں لڑا ہے، بہت تو رسیا سے 10 سال۔ اب بتائیے، دونوں سپر پاور سے لڑا ہے، دونوں سپر پاور۔ امریکہ سے 20 سال۔ اب طالبان میں افغانستان میں یہ لوگ نہیں جا سکتے، بریلوی لوگ نہیں، بالکل ایک دم وہ لوگ پسند نہیں کرتے، وہ لوگ پاکستانی کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ پاکستان میں بریلوی کا آبادی جو ہے 65% ہے۔ 55؟ ہاں، اب 25% دیوبندی ہے پاکستان میں۔ ہاں پاکستان میں، باقی اور جو بچا کچھ ہے سب ملا کے ہے، عیسائی ہے، اور وہاں میں اور کچھ کرسچن عیسائی ہے اور شیعہ ہے، یہ سب ملا کے باقی ہے۔ باقی 25% جو ہے وہاں دیوبندی ہے۔ اب نئی جنریشن جو ہے بریلیت سے دور ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ بالکل، اتنا تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار جب یہ قرآن کی دلیل دیتے ہیں تو اس پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں بریلوی لوگ۔ جیسے وہ قرآن کی دلیل دیتے ہیں نا کہ ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وہ پہلے پارے کی، دوسرے پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے صبر سے مدد مانگو۔ تو کہتے ہیں دیکھو پاکستان کا جو کیا نام ہے ان کا، حبیب اتاری صاحب، ہاں وہ یہی دلیل دیتا ہے۔
हाँ वो यही दलील लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये तो नमाज सबर तो अल्लाह है नहीं, तो इससे मदद वहीं मांगा पर जाए। कोई आदमी समझदार खड़ा हो जाए और अदब से खड़ा हो के हजरत 1 मिनट लूंगा ज्यादा नहीं, कि क्या है कि अभी आपने कहा कि अल्लाह ने कहा नमाज से सबर से मदद मांगो, कि बेशक, तो ऐसा है कि जितने बेवकूफ आपके सामने बैठे हैं 1000 2000 5000, इन बेवकूफों से कहते हैं कि अल्लाह ने कहा नमाज से सबर से मदद मांगो, तो इस तरह से पढ़वाओ आप, या नमाज अल मदद या सबर अल मदद। तो वो अभी बत्तारी चौक जाता कि ये क्या है, ये क्या है। अरे अभी आप कह रहे हो अल्लाह ने कहा है और अल्लाह के फरमान से आप ही इनकार कर रहे हो। अल्लाह ने कहा ना नमाज से मदद मांगो, तो ऐसी तो मदद मांगेंगे ना, या नमाज अल मदद, जब तो मदद मांगना होगा नमाज से। तो फिर अभी बत्तारी चौंक जाएगा कि ये किसने बता दिया। अरे तू बता रहा है, किसने बता दिया, अभी तू बता रहा है कि अल्लाह ने कहा है और अल्लाह के फरमान से, अब तू ही इनकार कर रहा है। अरे ये नहीं मतलब थोड़ी है, ये नहीं है, तो फिर क्या मतलब है, तू ही बता ना हमें, क्या मतलब है, क्या मतलब है शायद का, बता तू। अरे तो ये नमाज लोग किसके लिए पढ़ी जाती है, इनका, इससे पूछा जाए। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, सबर अल्लाह के लिए किया जाता है, तो क्या मतलब हुआ शायद का, मतलब ये है कि नमाज पढ़ो, सबर करो, अल्लाह से मदद मांगो, ये मतलब है शायद का। इन लोग का आवाम भी वैसे ही होता है, बहुत गुमराह है ये लोग, नहीं, इन ये लोगों लोग ने मांग भी लेगा। नहीं, इन लोगों ने गुमराह किया है दरअसल, ऐसी बातें हाँ बता बता के हाँ, कि गुमराह अवाम कर दिया है। अब अवाम को देखिए चक्कर है। बात ऐसा हो जाता है, देखिए वो जो हैदराबाद का एक है ना, क्या नाम है अहमद उनका, नक्शबंदी कालिया। अहमद नक्शबंदी साहब जो है, वो जो है वो बोल रहा है कि अगर कोई पूछे कि या गौस अल मदद कहाँ लिखा है, तो कुरान में पूछो, कुरान में या अल्लाह मदद कहाँ लिखा है, ऐसा बोलने के लिए तो बोल वो रहा है। बरेलवी थोड़ी है, वो अहमद नक्शबंदी बरेलवी नहीं है। हाँ वो पहले तो वो तो कुछ पैसा और था, कमाने के लिए बरेलवी बना हुआ है, उसे तो बरेलवी लेकिन खुद ही नहीं उसपे मानते, भी, सुन्नी बरेलवी सुन्नी नहीं मानते उसे। हाँ तो उसपे भी तो आवाम आवाम सुभान अल्लाह का नारा लगा रहा है ना, उनका वीडियो आप देखिएगा। वो तो आवाज अगर की वजह से थोड़ा पब्लिक इंडिया की बेवकूफ ज्यादा हो गई है, यहाँ तो कोई ज्यादा भी है। आके बेवकूफ बना लेता है। हम्म। कोई भी हो, वो थोड़ा बहुत चमत्कारी हो तो उसके पीछे पब्लिक भागने लगती है। इंडिया की पब्लिक का ये हाल है। तो अभी इसलिए जैसे ये लोग आवाज के जरिए से, कहीं ड्रामों के जरिए से पब्लिक को अपनी तरफ खींच लेते हैं। बस पब्लिक को पास इतना इल्म नहीं है ना इंडिया में। अब बात बात जब रसूलुल्लाह पे आ जाए तो सबको पीछे कर देना चाहिए। अब अब देखो, वो जैसे, अहमद नक्शबंदी के खिलाफ तो मुहद्दिस कबीर, जो बरेलियों के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं ज़ियाउल मुस्तफा साहब, उन्होंने भी फतवा लगाया है कि ये इसको क्यों बुला लिया सांड को। मतलब वो पाली में जब आया हुआ ना राजस्थान में, तो उन लोगों से कहा तुम पाली वालों हमसे तो मशवरा करते, सांड को क्यों बुलाया। मतलब यही था कि इसको क्यों बुला लिया तुमने अहमद नक्शबंदी को। तो जब बरेलवी उसे बरेलवी नहीं मान रहा, तो फिर ये काहे को चकता फिर रहा है बरेलियों की तरफ से। हाँ तो इन लोग का तो अभी आपस में मुनाजरा चल रहा है। अब देखो आप वो हजरत आप पीर मसोली मियाँ वाले हैं ना, गुलजार मियाँ, उन्होंने ये कहा मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे तो आला हजरत पर नाज है, और अजहरी मियाँ पे और ज़ियाउल मुस्तफा साहब पे नाज है। और इनके नाम बहुत अदब से लिए उन्होंने, बहुत ज्यादा अदब से। और हजरत अली का नाम वैसे ही ले लिया साधारण तरीके से। और वो अशरफ आसिफ जलाली जो उनका पाकिस्तान में, उसने कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा बाग फदक का जब मुतालबा हाँ कर रही थी खता पर थी। बहुत गलत बात किया वो, उसका तो खैर खुद से ही मुनाजरा चल रहा है। आप अच्छा बरेली ये बरेली में, बताओ कि उसने इतनी तो हिम्मत कर ली कि वो बाग फदक के मसले में खता पर थी, लेकिन कभी उसने नहीं कहा कि फाजिल बरेलवी भी फला मसला बताने में खता पर थे, कभी नहीं कहा उसने। कभी नहीं कहा, और हालांकि न हजारों कहेगा, गलती न होंगी। कहेगा भी नहीं, सोचेगा इतना कह दूंगा तो मेरी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, मुझे लोग काफिर बना देंगे। अभी देखिए ना, इन लोग का एक और आलिम है पाकिस्तान का, कमरान शहजाद साहब। वो तो बहुत काबिल शख्सियत है, वो पहले वो जो है बरेलवी थे, ठीक इनकलाबी है, शख्सियत है। वैसे वो कभी कभी लेकिन गलती तो उनसे हो जाती है, हाँ लेकिन है गलती इनकलाबी। इंसान तो है, गलती तो लेकिन होगी। मुहक्किक है, हाँ, गाफिल मुहक्किकीन है साहब। वो क्या बोले कि फतावा रिजविया जो है कम से कम जो है 4 बार हम पढ़ाए हैं, अरे तो फतावा वो तो रिजविया, गाफिल मुहक्किकीन है साहब। इस वक्त का मुफ्ती शहजाद कामरान, फतावा रिजविया पढ़ाते थे वो। और वो जब सबसे उसमें अच्छी बात गलती तो मिला, उन्होंने, सबसे अच्छी बात यह है कि किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते। वो देवबंद बरेली हाँ अलहदी, वो सीधा इस्लाम बयान हाँ करते हैं। हाँ, हक बयान करते और हैं। यही होना चाहिए। जैसे जमाने में नाइबुल मुजद्दिदीन सुल्तानुल मुकर्रिरीन हजरत मौलाना उस्मान साहब शाही इमाम पंजाब, वो भी सीधा इस्लाम बयान करते हैं बस। वो भी जो है बोले कि हम पढ़ाते थे पहले, तो हमको जब गलती मिला हम अपना उस्ताद से जो है कंप्लेन किए, तो वो तो पहले हमको समझा दिए, हाँ हम भी चुप हो गए कि हो सकता है कि गलती हमको समझ में आ रहा, गलती नहीं होगा। हाँ हाँ। लेकिन जब फिर दोबारा मिला तो उस्ताद को भी मानना पड़ा कि हाँ फतावा रिजविया में 2 हिस्सा है,
اچھا یہ لوگ ولیوں سے مانگنے پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. جب اللہ فرماتا مجھ سے مانگو ادعونی استجب لکم، قرآن میں علیہ صلی اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ قرآن میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. قرآن میں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ ولیوں سے مدد منگوانے پر تلے رہتے ہیں. مین بات ہے کہ وہی بات ہے پھر جو میں قرآن سے دور ہیں، یہ قرآن سے دور ہیں، قرآن سے دور ہے، یہ کتاب سے نزدیک ہے. جو شریعت پہ حتی الامکان عمل کرو، اور میرے یہ فاضل بریلوی کے تو قریب ہیں، قرآن سے دور ہیں لوگ. ہاں، اور اللہ کے رسول نے آخری حج میں فرمایا، تو فاضل بریلوی تو اپنی کتاب میں لکھے ہیں نا کہ میرے شریعت پہ حتی الامکان عمل کرو، اور میرے دین و مذہب پہ جو میرے کتب سے ظاہر ہے اس پہ جو ہے مضبوطی سے قائم. انہوں نے تو یہ لکھ کر کے ایسا انہوں کو مضبوط بنا دیا کہ آج دعوت اسلامی والے بھی مضبوطی سے انہی کی باتوں پہ عمل کر رہا ہے. بالکل ایک دم. اچھا شریعت کے بارے میں تو انہوں نے الملفوظ میں لکھا، آخر میں جو آپ بتا رہا ہوں نا، آخر میں ہے وصایا شریف میں، کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا. اپنے بیٹے سے کہا، بیٹوں سے، یہ حسنین جو ان کے بھانجے وغیرہ جو تھے، کہا رضا حسنین شریعت پر حتی الامکان عمل کرو. حتی الامکان کی تعریف یہ ہوتی ہے جہاں تک ہو سکے، یعنی کوشش کر لینا جتنا ہو سکے. تو شریعت میں تو سب کچھ ہے، نماز روزہ زکوٰۃ ہے، سبھی احکام شریعت کے اندر ہیں. پھر اس کے بعد لکھ رہے ہیں کہ میرے دین و مذہب پر. کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے دین و مذہب اپنا الگ کیا ہے شریعت سے. جب شریعت کے بارے میں لکھ دیا کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرو، تو اسی پر زور دیتے کہ پورا مکمل طور سے شریعت پر عمل کرنا، مضبوطی سے عمل کرنا، تو بات صحیح ہوتی. انہوں نے لکھ دیا شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا اور میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہر فرض سے ہم فرض ہے جو میری کتابوں، یہ بھی لکھ دیا جو میری کتابوں میں. اگر یہ لکھتے جو ولیوں نے لکھا ہے، امام ربانی مجلس ثانی شیخ عبدالحق صاحب نے، تو بات مان لی جاتی. انہوں نے تو اپنی کتابوں کی قید لگا لی جو میری کتابوں میں ہے اسی پر عمل کرنا، یعنی ان کی کتابوں سے باہر مت ہو. دعوت اسلامی والا یہی تو کہتا ہے الیاس قاضی کہ ہم فاضل بریلوی کے مسلک سے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہٹیں گے. شریعت سے ہٹ جائیں گے لیکن ان کے مسلک سے نہیں ہٹیں گے. اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ قبر میں شیطان ہو ہی نہیں سکتے، ہاں نہیں ہو سکتی. اب بتاؤ، امام حسین السلام کی والدہ ماجدہ سے غلطی بتا رہا ہے اشرف واصف جلالی، لیکن فاضل بریلوی کے بارے میں نہیں بتائے گا. کتنا ان کا بتاؤ کتنا ناقص ایمان ہو چکا ہے. اور پھر ایمان والے بنتے ہیں. مناظرے کر رہا ہے اشرف واصف جلالی کے آدمی، مناظرے کر رہے ہیں خطا پر، یعنی تھی اس پر جو ثابت کر رہے ہیں وہ استغفر اللہ بن رحمۃ اللہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کر رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا. ارے کسی نے کیا لکھا، تو تجھے سب بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب دیکھیے ان کے دونوں بڑے جو پہلا ان لوگ کا پہلا سیف الاسلام، دوسرا سیف الاسلام، یہ لوگ تو چلے گئے. اب سمجھیے یہ لوگ اتنا دن سے ان لوگوں کو صلح کر لیا، اب تو بول دیے وہ لوگ، تو کلیئر بول دیے کہ نہیں ان کی کتابوں میں تو غلطیاں نہیں ہیں. مان تو دیے نا وہ لوگ. اور ٹھیک ہے، انسان ایک کا کسی کتاب میں غلطی ہوگا. آپ فتاوی شارح بخاری لینا، مفتی شریف اللہ غمجدی صاحب جو حالت کے پوتے شاگرد ہیں، انہوں نے خود صفحہ 36 سے لکھا ہے فتاوی شارح بخاری جلد اول میں کہ سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں فاضل بریلوی کی 2 کتابوں میں، ایک احکام شریعت میں، ایک الملفوظ میں. 2 کتابوں میں سینکڑوں غلطیاں بتائی ہیں انہوں نے. خطبات محرم آپ کے کلکتہ میں مل جائے گی، اس میں آخر میں مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے لکھا کنز ایمان کی ہم نے فہرست صحیح کی، تو اس میں 5 بار یا 6 بار کی اصلاح کے باوجود بھی 32 غلطیاں رہ گئی تھی. صاف لکھا ہوا کہ 32 غلطیاں پھر بھی رہ گئی تھی 5 بار یا 6 بار کی اصلاح کے بعد. یہ کنز ایمان کی فہرست میں غلطیاں نکالی ہیں مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے. آپ پڑھنا خطبات محرم کے آخر میں لکھا ہوا. اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ مفتی اعظم کے بہت سے خلیفت نامے لے کے ان کے داماد سے چلے گئے، پیری مریدی کر رہے ہیں، یعنی جھوٹی پیری مریدی کر رہے ہیں. ان سے جب خلافت نہیں تو کیوں پیری مریدی کر رہے ہیں؟ ان کے داماد سے لے گئے ساجد صاحب سے. یہ بھی لکھا ہے خطبات محرم کے آخر میں. جو آپ بھی تھی میں انہوں نے اپنا واقعہ لکھا نا، اس میں سب لکھا ہے. اس کے بعد ان کے پڑ پوتے جو ہے کیا رجا اختر رضا خان صاحب، اختر رجا خان صاحب، وہ جامعہ مصر میں دیوبندیوں کے ساتھ پڑھ کے آئے تھے. وہ سب دیوبندی تو ہی 90%، 98% دیوبند والوں کا ہولڈ ہے. اور اس کے بعد جو ہے ان کو بات سمجھ میں آ گیا. ابھی کچھ دن پہلے ان کا ایک ویڈیو وائرل چل رہا تھا، وہ کسی نعت خواہ کا سامنے بیٹھ کے جو ہے دیوبندی نعت سن رہے تھے، اور ٹوپی بھی وہی جالی دار ٹوپی لگائے ہیں. اچھا، تو ہمیشہ کالی ٹوپی اور اونچی والی ٹوپی لگاتے ہیں. ہاں اور اس بار جو ہے وہ دیوبندی والی ٹوپی لگا کے ان کا ویڈیو بھی وائرل چل رہا تھا. ان کو بھی لوگ جو ہے صلح کلی، ان کو ڈرتے تھوڑا کافر نہیں کہتے کیونکہ وہ ارے وہ حضرت مولانا سلطان المجاہدین ہے، حضرت توقیر رضا خان صاحب ہیں. ہاں توقیر رضا صاحب، وہ تو علم بردار مسلک اہل سنت ہے، اہل سنت کے مسلک کے علم بردار ہے.
वो सबको मुसलमान मानते हैं, देवबंद वालों को, बरेली वालों को, सबको मुसलमान मानते हैं। अब वो तो कभी आ जाता है, जब ये घेर लेंगे तो कह देंगे काफिर कह देंगे, नहीं तो ऐसे काफिर कहते नहीं है वो। अब इनका बारी है मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना साहब का, ये बस नंबर लगने वाला है इनका, देवबंदी हाँ इनका, हाँ क्योंकि पहले इनको भी सुलह-कुल्ली जो है लगेगा, फिर बोलना, देवबंदी बना देंगे इनको। हाँ सुलह-कुल्ली बोलने चालू कर दिए हैं सब। चालू कर दिया, हाँ चालू अरे कर फिर दिया तो हो है। जाएगा, देवबंदी बन जाएगी। और उसके बाद जो है जो एकदम जो कट्टर है जैसे हम्माद रजा वगैरह, अरे ये ये लोग तो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं मकराना साहब को। तो वो मकरान लोग साहब, हक जो हक बोलेगा, जो नहीं हक हम्माद बोलने रजा लगेगा, उनके सामने लोंडा है, मुफ्ती शमसुद्दीन काबिल आदमी है और हम्माद रजा लोंडा है उनके सामने। हाँ हम्माद रजा ने तो कुफ्र बकाया ना, ये कहा था कि फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, और ये भी कहा कि जिस बर्तन से देवबंद वाला मुंह लगाए उसे फेंक दो। तो मतलब ये है कि काबे को वो क्या कहते हैं, वो हजर असवद को मत चूमो, देवबंदी चूमते हैं। वो जन्नत की क्यारी में नमाज भी मत पढ़ो कि देवबंदी पढ़ते हैं, ज्यादातर सब वही पढ़ते हैं देवबंद वाले, जन्नत की क्यारी में नमाज से। तो अब बताओ इनकी कहाँ दाल गल रही है साहब, जन्नत की क्यारी में भी ये नमाज नहीं पढ़ सकते, हजर असवद को जब ये नहीं चूमेंगे तो फिर क्या से हज होगा इनका। अगर ये कहेंगे साहब हजर असवद को तो चूम सकते हैं, क्यों चूम सकते हो, जो तुम्हारा हम्माद रजा कह रहा है जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगाए उसे फेंक दो, तो फिर हजर असवद को तो वही चूम रहे ज्यादातर 98%। तो तुम काहे को चूम रहे हो, सवाल होता है ना, तुम क्यों चूम रहे हो साहब, क्या ख्याल है। हाँ बिल्कुल। दूसरे जामे अजहर मिस्र में जब ये जाते हैं तो फजर ये पांचों टाइम की नमाज किसके पीछे पढ़ते हैं, ये कह देंगे हम कमरे में पढ़ लेते थे, चलो कमरे में मान लिया, जुमा कहाँ पढ़ते थे 2 साल तक, तो क्या तुम जुमा छोड़ते रहे वहाँ पर। और अगर पढ़ते थे तो उस इमाम का नाम मुझे बताओ, कौन सा इमाम था, उसकी बायोग्राफी बताओ, उसके बारे में हिस्ट्री बताओ, ताकि हम उसकी तहकीक कर सके। अभी मोबाइल का जमाना है, आजकल तो सोशल मीडिया पे मालूमात हो जाएगी कौन सा इमाम है। ये लोग अपने आवाम को तो गुमराह करके रखे ना, ये लोग अपने आवाम को जो भी बोल दे। नहीं अब आवाम इंशाल्लाह देखना, कलकत्ते से भी या बम्बई से मेरी ऑडियो सुन के जा सकते हैं मिस्र, यार अतहर हुसैन काजी कह रहा है 98% होल्ड है देवबंद वालों का जामे अजहर में। तो एक बार अतहर हुसैन काजी की बात मान के, यार 50,000 तो खर्चा हो ही आने जाने में, 1 लाख मान लो, पैसे की कमी नहीं है, तो कहेगा कोई कलकत्ते का सेट करेगा 10 आदमी में भेज जाऊँ, चलो अतहर हुसैन काजी बात मान के जरा जामे अजहर की पूरी हिस्ट्री लेके आओ, लैपटॉप में, मोबाइलों में, और वहाँ के नंबर लेके आओ, वहाँ के उस्तादों के। अभी तो बम्बई से अगर 10 लोग चले गए ना, बम्बई से, कलकत्ता से, इंदौर से, उज्जैन से, रतलाम से, कोटा से, जयपुर से, तो अतहर हुसैन काजी को फिर दाद देंगे, यार अतहर हुसैन काजी तुझे हम गलत मानते थे, अब सही मान रहे हैं कि वाकई 98% हो लेते देवबंद वालों का जामे अजहर में, सब के सब वही है टोटल। वहाँ सब पहले खड़े होते हैं, अंगूठा चूमते नहीं है, याकूब अल मदद कहते नहीं है, हुसाम अरमैन को मानते नहीं है, वो इमाम हरम को मुसलमान मानते हैं, देवबंद वालों को ही मुसलमान मानते हैं जामे अजहर वाले। आप जरा सा एक बात पे गौर करिए कि सिर्फ एक तबका को गलत साबित करने के चक्कर में इन लोगों का जो है हरम शरीफ और मदीना शरीफ में जो है इन लोग जमात से नमाज छोड़ दिए लोग। अरे साहब एक तरफ तो फाजिल बरेलवी ये कहते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, हाकिम हकीम रात दवा दें, ये कुछ न दें मरदूद ये मुराद के शायद खबर की है। तो मैं इस पे सवाल करता हूँ कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, तो मैंने कहा कि 100 साल में तुमने अपना इमाम नहीं मांगा अल्लाह के रसूल की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह हमें मसले के आला हज़रत वाले इमाम अता फरमाइए, कभी दुआ नहीं सुने आज तक हम। तो फिर ये शेर कैसा हुआ आला हज़रत का, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाए न हाजत अगर की है, हाकिम हकीम रात दवा दें, ये कुछ न दें मरदूद ये मुराद के शायद खबर की है। फिर दूसरा शेर खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जाएं आपके कब्जे अख्तियार में। तीसरा शेर में तो मालिक ही कहूंगा, हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। चौथा पांचवा शेर अल्लाह की रजा चाहते हैं, दो आलम अल्लाह चाहता है, रजाए मोहम्मद, और कुरान में फलन वली का कबिला तम तरदा, ए हबीब आप अपना रुख अनवर वहीं फरमाई जहाँ आपकी मर्जी हो। तो अल्लाह ने कबिला बदल दिया तो अल्लाह इमाम क्यों नहीं बदलेगा, अगर इमाम गलत आई है तो अल्लाह इमाम क्यों नहीं बदलेगा था। हम लोग का तो यही असील है, तो वो खड़ा ही नहीं हो सकता वहाँ पे। अरे वहाँ पर आईसी में भर्ती हो जाएगा, बदअकीदा खड़ा हो गया ना तो आईसी में भर्ती गिर जाएगा, वहीं के वहीं गिर जाएगा। 50,000 आलिम पूरी दुनिया के, मुफ्ती आलिम कारी मुहद्दिस शेखुल हदीस 50,000 के करीब पूरी दुनिया के आके उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जिसमें वली भी होते हैं, कुतुब भी होते हैं, अब्दाल भी होते हैं, सब उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। ये लोग झूठ फैला के रखे ना, ये लोग बोलते क्या कि उस्मानी गनी के टाइम में कैसे वो लोग कब्जा कर लिया। अब मैं तो आपको इतना बता रहा हूँ, जैसे 50 लोग हज को जाते हैं तो उसमें आप 1% अपन आलिम मान ले, 1%, जैसे 100 में से 1 आलिम तो जाता ही हर जगह से, कलकत्ता बम्बई दिल्ली जाते हैं कि नहीं जाते। हाँ। तो 50 लाख में से 1% में कितने आलिम हो गए पूरी दुनिया के,
50,000 हो गए कि नहीं? 50,000। तो 50,000 आलिम जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, तो बताओ उस इमाम का क्या मर्तबा, कितना बड़ा मर्तबा हो गया। वो दुनिया के बड़े बड़े कारी, सभी कारी, दुनिया के सभी मुफ्ती, सभी आलिम, सभी कुतुब वली अब्दाल उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। उनको गलती नजर नहीं आती। अरब ममालिक वालों को गलती नजर नहीं आती। जो अरबी भाषा जानते हैं वो क्या नहीं जानते कि हमारे इमाम गलत हैं? वो सब नमाज पढ़ते हैं, उनके इन्हीं को गलती नजर आती है इंडिया वालों को। ये क्या मालूम कौन कौन से थर्मल ये बैठे थे कि साहब वो नजदी हुकूमत है और नजदी है, फलाना है, ढिकाना है, जने कहाँ के रस्सी के सांप बना बना के काफिर बनाने लग जाते हैं। ये तो इब्ने अब्दुल वहाब की बात को रटे रहते हैं कि इब्ने अब्दुल वहाब का अकीदा ऐसा था। तो तुझे मालूम है कि इमाम हरम का भी वही अकीदा जो इब्ने अब्दुल वहाब का था। ये सारी बातें उनकी वो मानता है जो इमाम हरम है। वो तो पहले कुरान को मानते हैं साहब, इमाम आके पहले कुरान को, फिर हदीस को मानते हैं, रेल बेत को ही मानते हैं, साहबा को ही मानते हैं। देखिए डॉक्टर जाकिर नायक जो है वो अहले हदीस है। वो तो उसके अंदर तो खबासत है कुछ बहुत सारी। हाँ तो बहुत सारी मिर्जा इंजीनियर को मैं नहीं मानता, इसलिए कि ये कभी कभी हजरत इमाम रब्बानी अलशानी के बारे में इसने बहुत बकवास की थी। वो तो असल में देखिए उसका बारे में तो अभी हम आपको एक वीडियो के बारे में बताएंगे। वो मौलाना यासिर नदीम साहब है। उनका एक वीडियो हम भेजेंगे। एकदम मिर्जा का ना एकदम पूरा हिस्ट्री मिर्जा इंजीनियर तो क्या है, वो अमेरिका का एजेंट मान लो। हाँ उसका मकसद ये है कि लोगों को औलिया किराम से बदलन करना, सहाबा किराम की तरफ से दिल हटाना। और हजरत पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी ऐसे ही बोल रहा था वो अभी। बहुत मिर्जा को एकदम बिल्कुल। और हजरत शेख मुद्दीन चिश्ती अजमेरी के बारे में तो बहुत बकवास करता है वो असल में देखिए वो चिश्ती ग्रुप से नफरत करते हैं। अब बताओ, हम ये नहीं मानते कि अकालीब नवाज ने इस तरह से कलमा पढ़वाया होगा जैसा वो बताता है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये तो उनकी तरफ मंसूब है। अब ये इसकी हकीकत क्या था? उस जमाने में किताब लिखने का दौर थोड़ी था। उस जमाने में नालिम थे, नकारी से ज्यादा। अभी यासिर नदीम साहब जो है उसके खिलाफ में बहुत अच्छा वीडियो बना के मतलब नहीं, वो तो बिल्कुल इंजीनियर का काम ये है कि लोगों के दिलों में शक पैदा करना। शक वो 90% अच्छी बातें ही बताता है और इसमें फिर 5-10% ऐसी मिलाता है कि अवाम गुमराह हो जाए। तो यही इलियास काजी का मामला है। इलियास काजी 90% इतने अच्छे काम करवाता है कि लोगों के दिल जीत ले और लोग दीवाने हो जाएं। फिर उसमें 5-10% ऐसे मिलाता है कि ईमान बर्बाद हो जाए। यानी अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल उसने कहलवाया, मदीने शरीफ का मजाक बनाया, इंसान को मदीना कहा, अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, लब्बे की अफ्तार के नारे लगवाए, इलियास की आमद मरहबा कहलवाया, मीलाद नामा अपना पढ़वाया। जो काम कादियानी ने नहीं किए, गुलाम कादियानी ने, वो इसने कर डाले इलियास काजी ने। कादियानी ने कभी अपना मीलाद नामा नहीं पढ़वाया। कादियानी ने कभी अपने बाल को बाल मुबारक के नहीं बढ़वाया। कादियानी ने कभी लब्बे की या कादियानी के नारे नहीं लगवाए। जो इलियास काजी ने सब काम कर दिए, वो सब ठीक है पढ़ा बस। नहीं अब कुछ नहीं, अब नहीं। इलियास काजी ने सब काम करवा दिए। बरेलियों में हीरो क्यों बनाया कि वो आला हज़रत के गुण गाता है। उसने टेक्निक अपनाई है कि आला हज़रत का नाम लो सब माफ हो जाएगा। वो इस्तिग़फ़ार है उन लोगों का। अरे मैंने फिरके का नाम फिरका तौबा रुजू रखा है। हर कभी तौबा कर लेते हैं, हर कभी रुजू कर लेते हैं। हाँ यही तो, ये इस्तिग़फ़ार है। आला हज़रत करते रहिए, ये इस्तिग़फ़ार है। इसने तो कुफ्र यानी कैसे कैसे कुफ्रिया काम किए साहब इलियास काजी ने। हाँ बिल्कुल एकदम। देखिए सफा 27 फैज़ान सुन्नत में लिखा है कि जो भी इसके इज्तिमा में गया है लानी में सबकी बख्शिश हो गई, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। अब वो ख्वाब इसने कटवा तो दिए नई किताब में से, लेकिन आज तक कलमा पढ़ा, न तौबा किया, न वजाहत किया। जबकि कटवाने से काम नहीं चलेगा जब तक ये कलमा नहीं पड़ेगा। ये कहते ये कटवाने से क्या हुआ? उसने तो गुस्ताखी की थी, कलमा पढ़वाओ ना उससे। और सफा 3 में लिखा कि ये किताब अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल है। जब ये किताब अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल थी फैज़ान सुन्नत, तो ये ख्वाब क्यों कटवाए? समझ में आई बात? वो अपने आप को एकदम कुछ दिन बाद मुझे अच्छा, लेटेस्ट में उसकी करामत देखो। इलियास काजी की करामत क्या है? वो खबासत है कि पहले उसके काले निशान था चेहरे पे, अब लेटेस्ट में आप खोल के देख रहे हो गूगल से, उसने अपने निशान सफेद करवा लिए, चेहरा सफेद करवा लिया मेकअप के जरिए, ब्लीचिंग के जरिए से। ब्लीचिंग के जरिए। अब बताइए आप, ये ऐसे नाटक कर रहा है, लोग ऐसे मान रहे हैं। और बरेलवी लोग कहते हैं कि साहब वो वली है, वो बुजुर्ग। अरे यार जब इतना अच्छा काम कर रहा है तो तबलीग जमात वाले भी तो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें भी मानो ना। अगरचे उनके अंदर भी कुछ गलतियां सब में होती है, सब में होती है, गलतियां सब में होती है। हालांकि मस्जिद में से सुलाना नहीं चाहिए लोगों को, इन लोगों को मस्जिद का अदब रख के अलग कमरे बना दें तो और भी अच्छा हो जाए काम। साइड में कमरे बना दे तो बहुत बढ़िया काम हो जाए। और इनके अमीर पर भी दारुल देवबंद का फतवा लगा है, तो वो तो दारुल देवबंद वालों ने फतवा दे दिया उनके अमीर पर।
तबलीगी जमात वालों के। लेकिन कभी बरेली से इलियास काजी पे फतवा नहीं लगा अभी खुल के। और तबलीगी जमात के ये लोग कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। ये लोग तबलीगी जमात का होश पूरी दुनिया में इस तरह का है कि इलियास काजी के अगर 10 आदमी है तो वहाँ उनके 200 आदमी है। तबलीगी जमात के 200 आदमी मिलेंगे, जहाँ इनके 10 मिलेंगे ना वहाँ उनके 200 मिलेंगे। जहाँ इनके इंग्लैंड में 2 कमरे मिलेंगे तो वहाँ उनके 200 कमरे मिलेंगे। ये लोग तो चंदा करने के हालांकि लिए कमी तो देखो सब में है तभी जमात वालों में। ये है कि ये एजुकेशन पे जोर नहीं देते, पढ़ाई लिखाई पे जोर नहीं देते, कारखाने बनाने पे जोर नहीं देते कि मुसलमानों के लिए फैक्ट्रियां बना दें, कारखाने बना दें तो मुसलमान रोजगार से भी लग जाए, नमाजी भी बन जाएंगे उसी कारखाने में। उसमें शर्त रख दो जिस कारखाने में वही आएगा जो नमाज पढ़ेगा तो पक्का नमाजी बन जाएगा। वैसे ही आदमी चाहेगा कि यार ऐसे कारखाने की तो हमें जरूरत, तो रोजगार भी लग जाएगा और नमाजी भी बन जाएगा, वहाँ पर उसको दिन भी सिखा दे। मगर ऐसे काम नहीं करते लोग, जबकि इस जमाने में कारखानों की फैक्ट्रियों की जरूरत है। मुसलमान बेरोजगार बहुत हैं और मुसलमान गुमराह हो रहा है। अगर ये तबलीगी जमात वाले ऐलान कर देना अमीर जमात के भाई कारखाने बनाओ, फैक्ट्रियां बनाओ, तो कितने मुसलमान, करोड़ों मुसलमान तो बगैर गश्त किए बगैर चिल्ला किए नमाजी बन जाएंगे। क्या ख्याल है साहब? लाखों तो बन ही जाएंगे। क्या ख्याल है? तो आप कलकत्ता में कौन से महल्ले में है? हम कलकत्ता हावड़ा जिले में। हावड़ा में वो मौलाना ताहिरुल काजी थे, मर गए क्या जिंदा है? मौलाना ताहिरुल काजी वहाँ के, उनके मुफ्ती हसीबुद्दीन साहब के लड़के हैं बिहार वालों के। उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, महोबा में थे, वो पढ़ाते थे वहाँ। अच्छा। तो एक ताहिरुल काजी है आपके कलकत्ता में भी, हावड़ा में। तो अब ये बताओ, आपके नाखुदा मस्जिद जो कलकत्ता में, उसमें एक देवबंदी इमाम है, एक बरेलवी इमाम है, दोनों नमाज पढ़ाते हैं। अच्छा, सब पढ़ता हुआ मैं नमाज सब पढ़ते हैं ना उसमें? हाँ, उसमें सब नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, 2 नमाजें देवबंदी पढ़ाएगा, 3 बरेलवी, ऐसा ही हिसाब है वहाँ? हाँ, वहाँ लेकिन सब नमाज पढ़ता है। हाँ, नमाज सब पढ़ते हैं कलकत्ता नाखुदा। इमाम कोई भी खड़ा हो जाए, नमाज तो सब पढ़ता है। अब बताओ बरेलवियों के साथ कैसे नमाज हो जाएगी उस मस्जिद में, नाखुदा मस्जिद कलकत्ता में? तो मेरा तो ये कहना है कि जो कुरान का हाफिज हो जाता है मैं उसको मुसलमान मानता हूँ कि कुरान का हाफिज सिर्फ मुसलमान होगा, बेईमान नहीं हो सकता है। कुरान में इन्नमल मुश्रिकून नजस, बेशक मुश्रिक नजिस है, फला यक़रबुल मस्जिद अल हराम बाद आम हाज़ा, वो मस्जिद हराम के करीब ना आए 1 साल के बाद। तो मैं बरेलियों को भी नहीं कहने देता मुश्रिक, इसलिए कि कुरान के हाफिज बरेलियों में भी होते हैं और देवबंद वालों में भी होते हैं, लखनऊ अहले हदीस में भी होते हैं। जिसमें हाफिज पाया जाता है मैं उसको मुसलमान मानता हूँ। बस आगे पीछे की हम नहीं देखते, थोड़ी बहुत गलतियां सब में है, नजरियात की, अकायद की, लेकिन ईमान से कनेक्शन जुड़ा है जब ये कुरान का हाफिज है। क्या ख्याल है साहब? अगर सोशल मीडिया पे अगर जोर है, अमेरिका का यहूदी 5 पारे भी याद कर लेता ना, या अफ्रीका का यहूदी, तो आज पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है। क्या ख्याल है साहब? हाँ, जरूर, एकदम फेमस हो जाता है। फेमस हो जाता है। ये कुरान के हिफ्ज की तौफीक अल्लाह ईमान वाले को देगा। देखो कादियानी में हाफिज नहीं होता, शियाओं में नहीं होता, गाली दर्जे के शिया होते हैं उनमें नहीं होते, ईसाइयों में नहीं होते, सिर्फ ईमान वालों में होते। गैर मुस्लिम में जो लोग कट्टर होते हैं ना, जो लोग रिसर्च करने निकलते हैं, वो लोग कुरान को पढ़ने चालू करते हैं तो अल्लाह पाक उन लोगों को हिदायत देता है। इस तरह हज़रत हाफिज शाह जमाल रामपुर में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके सामने एक पंडित आए, उनको लोग लेके आए कि उन्होंने कहा जो सुबह मिल जाए उसे ले जाना, तो पंडित जी मिल गए। कहा चलिए तराबी सुनाना, कहा कि नहीं मैं पंडित हूँ। कहा कि हाफिज साहब ने कहा चलो उनके पास ले गए। हजरत ने नजर डाली, पहले वो ईमान लाए, साहिब ईमान हुए, फिर बाद में हाफिज कुरान हुए। और हजरत सदर फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी के जमाने में एक पंडित ने 15 पारे हिफ्ज के दावा किया था, लेकिन आपने सुने नहीं थे 15 पारे सुनते तो 1500 गलती निकलती उसकी, क्योंकि इनकी इतनी जबान साफ कहाँ से हो जाएगी गैर मुस्लिमों की? वो सीन को सीन पढ़े, स्वाद को स्वाद पढ़े, ते को ते पढ़े, ऐसी जबान हो जाएगी क्या साहब गैर मुस्लिमों की? है ये तो ईमान वालों की होती है साहब। क्या ख्याल है? तो आपका नाम नजरुद्दीन है? हाँ, नसरुद्दीन, अंसार नसरुद्दीन, अंसारी हैं आप? हाँ, अंसारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अंसारी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और आप तो सबसे मिलो, बस जो हक बात है वो पहुँचाते रहो, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह मैं डलवा दूंगा चैनल पे, फिर बात करेंगे। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह।